I have been given topic to discuss about kids like special dietary situations, issues in children with liver disease. So liver is a very peculiar, second largest organ in the body, and it has around more than 500 functions. And like kidney, where a transplant is done, just one kidney is required. In cirrhosis, also in 20 to 30% liver is also required to sustain life for some time. And if you remove the liver, the patient will die in 24 hours. So functions of the liver has been discussed in detail. It has very large functions, metabolisms and steroid metabolism, hormone synthesis, vitamin synthesis. It also acts as a basically conversion to ammonia and to urea. That is very important functions. So this is a child who is with a chronic liver disease, cirrhotic liver disease, who is emaciated with abdominal distension, that is ascites, irritable. So why all these things occurs in children? Children is more important compared to adult because adult has achieved their growth and development, but children are going in the development stage. So they require additional and extra calories and protein, apart from the calories and protein for the fighting for the disease and for the metabolic requirements. So they are more special in terms of that. So the reason for all these things, malnutrition in children, can be because of poor intake, that is disease related, because liver disease is a hypercatabolic state where there is anorexia occurs, also because of organomegaly, ascites, there is fluid resection is done, and comorbidity is also associated, like there is a change in taste because of the medicine which has been given. Also there is change in the taste of the food because of some micronutrient deficiencies, and iatrogenic, like when the patient is admitted for the child gets ill in between and his food and nutrition being hampered, and also he requires additional food and nutrition for the development. Also I think altered nutrient metabolism has been talked about, so we'll not go into this, and maldigestion because the total bile acid pool is being affected. So there is a difficulty in digestion of the fats, and also there is malabsorption. So because of the bowel is inflamed, there is an enteropathy. So that food, whatever is available, is not being absorbed, not being digested. So that is, and on the other hand, there is a more requirement. So children are basically more amenable for the malnutrition. So for giving the nutrition, the assessment is most important in children. So our goal should be like to confirm the growth and development, educate growth and development of the child, to establish the normal nutritional status, evaluate the risk of the undernutrition and overweight sometimes, like it has been talked, and provide guidelines for the nutrition therapy time to time, and monitor the impact of the nutrition therapy in between. So detailed history is very, very important, because small children, their dietary habit is very fussy. We all know that sometimes children eat, sometimes they don't. So average children, what you have to take 3 days average for the nutritional assessment in the history. Also, you have to basically see for the microvitamins deficiency, like oral examination, skin examination for the fat deficiency, and for the nutritional assessment, as already been discussed, like anthropometric evaluation and tricep skin fold, because as anthropometric evaluation is basically hampered by the ascites, organomegaly, but this triceps is not hampered by all. These are basically weight independent criteria, we can say. And so, and also for the rapid assessment, nutritional risk scores is there. And also in pediatrics, there is a, like in adult, we have discussed, there is a pediatric subjective global nutrition assessment is there. Also, because the child is growing, unlike adult, there is different requirement for the different age. There is different weight for the different age, different height for the different ways. So there are the growth standard charts. The charts are like weight for age, length for age, then again BMI charts and mid-arm circumference for the various ages. Till 5 years, mid-arm circumference is fixed. But after that, I think there is a formula. I will come to that. So this is the basically
percentile charts and Z-score charts. Percentile charts is basically mean value of the population for the weight or height. Like Z-score is basically standard deviation from the mean. Z-score is more sensitive because it is more closer for the actual value. So this is basically, we have two charts for the growth assessment of children. 0 to 5 years, we have the MGRS chart. For whole of the world, it is the same. For more than 5 to 18 years, different countries have their own charts because their population grows at their own levels. So this is the Indian Academy of Pediatrics charts, where weight and height is there, centiles is there, and on the other side, that is the BMI charts is there. And in the red lines, you can see that the overweight chart, growth chart is there. And after that, BMI 27, that is the obesity chart is there. So that 23 is comparable to the adults, and 27 is comparable to the adults for the overweight. So this is the one example I'm going to show. What is how it can be calculated? Like this is the around 10 years old child. His weight is around at third centiles, and his height is at around 50 centiles. So what will it call? His weight is around less and height is normal. When the height is affected, if there is malnutrition for a long time, then only the height will be affected. And weight is acute, diarrhea ho gaya, kuch infection ho gaya, weight will be affected. So this will be known as acute malnutrition. Okay. So now likewise this, another example where weight and height are at the both centiles. So इसमें क्या है? Weight और height दोनों affected है और same level affected है. तो इसको क्या बोलेंगे हम? This will be known as chronic malnutrition. Very good. And what will be the third condition? Like height is at third centile, weight is below third centile. इसको क्या बोलेंगे? Already weight and height दोनों affected है, certain बीमार पड़ गया, height और कम पड़ गया. So this will be very good. This will be acute on chronic malnutrition. That's why children are need frequent growth chart monitoring and regular interval monitoring of these things. Very, very important. Head circumference has a index on malnutrition only till 5 years. I'm not going to details. You can go through that. There is basically a WHO Anthroplus app, or there is some that we can download in your mobile, and you can access website. I think last time I also told. I think everyone go through that. Whatever app you there for the children or adult also, you can immediately calculate the best site and you can apply that. So that is very, very important. This is the basically community chart where the mid-arm circumference is basically required, can be calculated for children 1 to 5 years, because 1 to 5 years it is fixed. After that it is not fixed. So you can see that red, orange, yellow and green. So more than 135 is green, that is normal. Red is, if it is less than 11 centimeter, it is danger zone. Severe malnutrition. Then orange is the moderate malnutrition. Yellow is the basically you have to be alert that child is going for the malnutrition. Skin fold thickness, tricep skin fold thickness, subscapular skin fold thickness. And these are basically the weight and age and BMI independent. I am again repeating. So there is no issue of that, because if your child is ascites, you don't have to basically reduce anything. This much I have to reduce, this much I have to reduce. The weight is, this is very, very sensitive. Tricep skin fold, this basically measures adiposity and muscle loss both. So fat thickness is around more than 10 millimeter in 1 to 6 years, and less than 6 millimeter of the tricep skin fold is indicative of the severe malnutrition. Also, there are basically normative data and normative value and normative graphs for the various age. Skin fold thickness for adults, the arm muscle area were calculated by the mid-arm circumference and tricep skin area with this formula. This is also available in one app. You just enter the value, you will be able to calculate the things. Now, coming to the nutritional risk scores, as I have discussed, this nutrition risk can be calculated rapidly for the patient is very, very sick, with like what is his present weight, what is his appetite,
what is his ability to retain or eat food, stress factors. There is some basically numbering is given, marking is given. So you can basically, if the numbering is 0 to 3, you don't have to worry, just monitor weekly or twice weekly. If the basically marking is 4 to 5, then you have to basically reinforce the dietary counseling child. And if the score is more than 6 to 15, then the child is going into the high risk of malnutrition. He may need require admission and intervention, active intervention. Like adult, we have discussed the subjective global assessment. We have pediatric version of subjective global nutrition assessment, where basically what is the basically current weight, which percentile is there, body weight, BMI, dietary intake, gastrointestinal symptoms, functional capacity of the child, metabolic stress, and examination is also considered in the subjective global nutrition assessment, like what is the loss of subcutaneous fat, muscle wasting, edema is present or no. So combining this, all the child can be basically divided into the normal or well-nourished, moderate or moderately malnourished, or severely malnourished. In normally, we have to just wait and watch. In moderately, we have to basically reinforce the dietary, and in the severely, maybe you have to actively intervention is required, and maybe we have to get admitted the child for the nutritional improvement. This has already been discussed: frailty, slowness, weakness, shrinkage, exhaustion, diminished activity. This is the basically measures of the physiologic decline in the multiple organ systems. I'm not going to detail because it has been already discussed. Coming to the imaging, there are a lot of things like DEXA scan, BIA, already been discussed. So this is the DEXA scan, bone marrow densitometry, where just minimum amount of radiation is done, and the whole body DEXA scan be done, which is very helpful in the not just bone marrow densitometry, but also basically calculating other things. Now this is the one patient DEXA scan, one child, where you can see the height is 151, weight is 36 kg. We can see that the bone, I think here the bone mineral content, the bone is around 1 kg and fat is around 3.5 kg, and this lean mass is around 28 kg, and BMC is around this. So combined alone, it is, yeah. So combined alone, it is around this 36 kg, this is around 32 kg. Rest will be fluid and edema. So this you can calculate each and everything. This is a very, very important thing. I request Dr. Surinder and Dr. Ajay and to convey Dr. Amit, this equipment we must have in our department, because endocrinology is already overburdened and they are doing from many departments, but this very, very sensitive and very, very important equipment. This we must have one more equipment in our institute. But this is very important. I have done one project with that. This is one from the one patients. Now this is also been discussed about the CT scan around these psoas muscles. Why only this muscle is being considered? Because there are a lot of muscles, because this is the earliest muscle to be affected. That's why whenever the patient is admitted in our institute, the CT scan being done. So because the dietitian, they are not very, now onwards, what you do, CT scan done, just see there the go to the radiology department, they tell what is the hospital unit of this basically sarcopenia to know the earliest detection of this psoas muscle sarcopenia. So this is the very, very important, and you don't need to basically do extra because most of the patient goes CT scan, I think. So that is very, very important. Now coming to the dietary management, because I have not gone details in the assessment because it has been discussed from morning. Now in child, it is very, very different, because there is a paradox in the dietary management. There are conditions like non-alcoholic fatty liver disease, obesity, where we restrict the intake. Please don't eat too much. But there are the conditions where you say, please eat much. Like in cirrhosis, malnutrition, emaciation, we give it. On the other hand, there are the
Conditions like acute viral hepatitis, because of the dietary taboos, the family don't give the food. Even the child is needed the food. And there are conditions where the God don't allow to take a food, like conditions of the galactosemia and thalassemia, where the nature deliberately restrict the food. So in children is it quite entirely different. So acute viral hepatitis I am coming, starting with. So cultural practice क्या? Most of the time, what? अच्छा येलो हो पीलिया हो गया, आंखें पीली होगी, डोंट गिव द टर्मेरिक. हल्दी नहीं देना है, नमक भी नहीं देना है, बॉइल फूड देना है, तेल भी नहीं देना है, लो कैलोरी देना है, प्रोटीन हाई प्रोटीन नहीं देना है. और सो दिस इज द चाइल्ड इज ग्रोइंग, डेवलपिंग, ही रिक्वायर्स मोर एनर्जी, मोर प्रोटीन, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग. सो this you all have to basically counsel the parents everything. That is most important. और ऊपर से क्या होता है, ये हम लोग कर देते हैं. What we are giving? What we are giving? You are giving the high osmolality drinks. को उसको ग्लूटोन डी पाउडर दे दिया. What is the osmolality of gluton D powder? Anyone? It is around 700-800. हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसका पता है कितना osmolality होता है? 1200 होता है. So खूब सारा 2-3 ग्लास दे दिया सो ग्लूकोन डी, he will vomiting again because of the hyperosmolality. ये वायरल हेपेटाइटिस है, ये इन्फेक्शियस डिजीज. ये आता कहां से है? मार्केट से हम लोग गन्ने के जूस पीते हैं, सब चीजें ओपन में खाते हैं, वहीं से आता है. और फिर हम उसको क्या करते हैं, वहीं से लेकर गन्ने के जूस. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम. फ्रूट जूसेस देते हैं, वो भी हाइपरऑस्मोलर होते हैं. और सो जो हमको नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो उल्टा जो करना चाहिए वो नहीं करते. So there are studies also shown that there is a AVH patient which consumes suboptimal nutrition है. कैसे उसको काउंसिल करेंगे? काउंसलिंग का आई थिंक तरीका बहुत क्लियर कट होना चाहिए. पेशेंट या अटेंडेंट को समझाना बहुत जरूरी है, उसके पेरेंट्स को जानना तो और भी जरूरी है. क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसको सीधे से बोलिए आप. क्या नहीं देना, उसको बोले ग्लूकोन डी का पाउडर नहीं देना है, फ्रूट जूसेस ढेर सारे नहीं देने हैं, गन्ने का जूस नहीं देना है, और उबला खाना नहीं देना है. ऐसे समझाएंगे तब समझाएंगे. और देना क्या है, इस तरह समझाना आपको. उसको तेल मसाला घी देना है नॉर्मल मात्रा में, हल्दी देना है, सॉल्ट नॉर्मली देना है, उसको ऑयल देना है नॉर्मल मात्रा में. सो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी शुड बी टेकन. सो दिस इज द वे टू बेसिक काउंसलिंग, अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टैंड. उसको खाली बोल दो कि नॉर्मल खाना दो, वो नहीं समझने वाला है. You have to specifically counsel this. Very important. So coming to the nutritional requirement under cirrhosis or chronic liver disease. Cirrhosis है, chronic liver disease है, albumin कमी हो, प्रोटीन कमी होगी तो albumin कमी होगी. उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों ने सुबह से डिस्कस किया, सार्कोपिनिया, मसल मास की प्रॉब्लम, एडिमा, एसाइटिस, सो बोन लॉस. तो हमको सप्लीमेंट क्या करना होगा, हाई प्रोटीन डाइट, एल्बुमिन सप्लीमेंटेशन और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन अदर फॉर्म, एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या होता है, स्पेशली इन कोलेस्टेसिस, जहां पे बाइल सॉल्ट पूल कम हो जाए, कोलेस्टेटिक डिजीज हो गया बच्चों में, बिलियरी हो गया, कोलेस्टेसिस हो गया, बहुत सारे बच्चों में बहुत कॉमन होता है. उसमें बाइल पूल कम हो जाता है तो फैटी मेलब्जॉर्प्शन हो जाता है. उसमें क्या होगा, और फिर वही बात हो गई, चाइल्ड इज डेवलपिंग, ग्रोइंग, ही नीड्स मोर कैलोरीज, मोर प्रोटीन. तो एक तो बढ़ना क्या हो तो कम होने लगा, वेट लॉस, स्किन इश्यूज बिकॉज ऑफ द फैटी मेलब्जॉर्प्शन, कोगुलोपैथी, विटामिन नहीं बन रहा है उसका, विटामिन के नहीं बन रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं बन रहा है, ओरल अल्सर, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से बन जाते हैं. सो दे शुड बी सप्लीमेंटेड विद द MCT. आई विल गो इनटू डिटेल लेटर ऑन. फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल डिमांड्स. और जैसा मैंने बताया, इट इज अ हाई हाइपर मेटाबॉलिक कंडीशन, हाइपर कैटाबॉलिक कंडीशंस, हाई एनर्जी कंजप्शन एंड फटीग हो जाता है, पुअर ग्रोथ हो जाता है. सो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज रिक्वायर्ड एज बीइंग एम्फसाइज्ड फ्रॉम द मॉर्निंग. एडिशनल प्रॉब्लम क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है इसका. कॉम्प्लिकेशन की वजह से पोर्टल लैक्टेशन ब्लीड कर गया तो आपको ब्लड के अलावा आयरन और फोलिक एसिड भी सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है बीच बीच में. डॉक्टर अर्चना वेरी नाइसली बेसिकली प्रेजेंटेड द रीनल इनसफिशिएंसी पॉइंट. सो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ऑल दिस बैलेंस हैव टू मेंटेन. हेपेटिक इनकोप्लोपैथी, उसमें क्या करना है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन करना नहीं करना है, ब्रांच अमीनो एसिड देना है. वी विल डिस्कस अबाउट. नाउ दिस इज द वन, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, सम पॉइंट्स आई विल बेसिकली डिस्कस.
You can see that very triangular white spot. आप लोग अब अभी कोई पेशेंट देखा करो लीवर का, उसको आंखें पीली के अलावा ये भी देखा पीली कोई व्हाइट स्पॉट तो नहीं. This is what vitamin A bitter spots. So from now just also see the patient, examine the patient. That is very important. आप उसको तुरंत विटामिन ए दीजिए, ये 3 दिन में जो है ठीक हो जाए. विटामिन डी, बोन की प्रॉब्लम, एक्सरे में देखिए देयर इज लॉट ऑफ कपिंग फ्रेइंग बोन की प्रॉब्लम है. इसका ये बोन टेढ़ा है, इधर उधर रिकेटिक रोजरी है, इसकी जो ये रिस्ट है रिस्ट वाइडन. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी. अभी मैंने बताया कि क्योंकि द टोटल बिलियरी पूल इज वेरी लेस, तो करना क्या इसमें, हम लोग एमसीटी देते हैं. तो अब एमसीटी क्यों देते हैं, एलसीटी क्यों देते हैं? ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं बल्कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है. इजिली एब्जॉर्ब तो ही है. नॉर्मल जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वो लिम्फेटिक्स थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. लेकिन एमसीटी में सारे एमसीटी नहीं, थोड़ा सा एमसीटी के बारे में और बता देता हूं. एमसीटी क्या होता है, C6 to C12 फैटी एसिड्स होते हैं. 6 तो बेकार होता है, 1% भी नहीं होता है उसका, खराब होता है. बचता क्या है, C8 एंड C10, उसको क्या बोलते हैं, कैप्रिक एसिड एंड कैप्राइलिक एसिड. वो क्या होता है, डायरेक्टली पोर्टर वेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द बेसिकली एमसीटी. और C12 केमिकल क्लासिफिकेशन तो है एमसीटी, बट अगेन ये जाता है तो है उधरी से लिम्फेटिक से. सो ओनली इंपॉर्टेंट इज C8 एंड C10. वेस्टर्न में हमारे पास कैप्रिक एसिड कैप्राइलिक एसिड नाम से वो आते हैं, फॉर्मुलेशंस आते हैं. लेकिन इंडिया में चूंकि बहुत कॉस्टली है इसलिए कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो उतना नहीं देते हैं. थोड़ा सा इसका जो है एमसीटी का कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज रैपिड ऑक्सीडेशन होता है इसमें, इसी वजह से, और हाइड्रोफिलिक होता है. सो लाइक नेचुरल सोर्सेस में अगर बात करें, अपार्ट फ्रॉम द मार्केट सोर्सेस, उसमें जो मोनोजन 85% मिलता नहीं, कई बार काफी टाइम. प्री नैन में अराउंड 21 to 25% होता है. नेचुरल सोर्स में कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल, ये आपको दिख रहा है 65% 50%, लेकिन इसमें होता है कि 50% से ज्यादा C12 है, वो काम का नहीं होता है, वो जाता है लिम्फेटिक्स के थ्रू. सो इट इज जस्ट अराउंड 12 to 15 to 20%. ब्रेस्ट मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, इसमें अराउंड 10% होता है एमसीटी. फैट सॉल्युबल विटामिन कितना देना है बच्चों में, बेसिकली 5,000 to 15,000, और उसके बाद जो है 10,000 इंटरनेशनल मंथली देते हैं. विटामिन डी देते हैं 2,500 से 25,000 पर डे. विटामिन ई 50 से 200, और विटामिन के 2.5 to 5 मिलीग्राम इन द बेसिकली सिरोसिस फीवर ऑन अल्टरनेट डे. और 5 ग्राम ओरली भी आता है, कैनेडियन टैबलेट नाम से 5 मिलीग्राम देते हैं. वाटर सॉल्युबल में क्या करना है, जस्ट रिमेंबर जितना नॉर्मल डोज होती है उसका डबल डोज देना है सारे वाटर में. तो दिस इज द डिक्टम. प्रोटीन के बारे में बात हो रही थी, दे ना दे तो ज्यादा दे तो पता लगा इंस्केफेलोपैथी चला गया, कम दे तो उसका जो है सार्कोपेनिया हो गया. क्या करना क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. सो AASD गाइडलाइंस क्या बोलती है कि जब पेशेंट अगर इनकैपेलोपैथी में जाता है, only that time we have to reduce the protein intake, that is around 0.5 milligram per kg per day. But once patient comes out of encephalopathy, you go whatever being discussed from morning, 1.2 to 1.5 gram per kg per day. This is for children. Okay. Which protein? Again, since morning it has been discussed, vegetable is the best protein. And coming to again branch in amino acids, जैसा किसी ने बताया कि aromatic amino acids they releases false neurotransmitters and patient can go into the encephalopathy. So branch in amino acids बच्चों में क्या है, एडल्ट में कुछ स्टडीज है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों में कोई स्टडीज नहीं है, कोई बेनिफिट में नहीं दिखाया गया. बट स्टिल ओनली इट हैज बीन एडवोकेटेड इन चिल्ड्रन ओनली इन केसेस ऑफ द HE. When the patient in HE, then 0.25 to 0.5 gram is given. जो सोर्स बता रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर MCT ब्रांच इन अमीनो एसिड्स के बेसिकली सैचेट्स आते हैं. दे कैन बी गिवन, दे कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड, दे आर मोर यूजफुल बिकॉज लिवर का डाइजेशन ऑलरेडी खराब है, तो उसके जो सोर्सेस हैं तो उतने ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे. लो सोडियम इंटेक, वही बात होगी जैसा अर्चना जी ने बोला, कम दे दिया तो पेशेंट
सोडियम कम हो गया तो पेशेंट विल गो इनटू द एक्यूट हाइपोनेट्रेमिक सिंड्रोम, फिर से उसको वोमिटिंग, लिथार्जिक, लेसिट्यूज, हाइपोनेट्रेमिक इनकैपेबिलिटी, ये प्रॉब्लम हो गई। ज्यादा दे दिया तो एसाइटिस, पेलिबिलिटी की प्रॉब्लम। सो रिकमेंडेशंस क्या है, कितनी सोडियम की जरूरत है बच्चों में, चूंकि छोटे बच्चे हैं, वेरियस एज के हैं, उनका अलग अलग है, तो रिक्वायरमेंट ही जैसे 1 ग्राम सॉल्ट में 70 मिलीक्यूलेंट ऑफ सोडियम होता है, ओके, और रिक्वायरमेंट है अराउंड 1 to 2 मिलीग्राम मिलीक्यूलेंट पर डे इन इन्फेंट्स। बड़े बच्चों में जैसे बताया कि 1 to 2 ग्राम पर डे, ओके। दिस इज सोडियम। 2 ग्राम सोडियम हो गया तो सॉल्ट कितना हो गया, कितना हो गया सॉल्ट, कितना हो, 5 ग्राम हुआ ना, 40% का 5 ग्राम हुआ ना। So coming to the how we basically initiate or the feeding in the cases of the cirrhosis or end-stage liver disease. We start with the basically regular diet, like similar to the healthy composition. Our aim is should be basically to go around 130% of the requirement. छोटे बच्चों में क्या करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क कर ले रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, साथ में उसमें एमसीटी ऐड कर देंगे, और उसमें क्योंकि छोटा बच्चा है उसको एडल्ट की तरह 3 मेजर और 3 माइनर तो कर नहीं सकते, he can be given around 1 to 2 hourly. Small frequent feed is very very important. और बड़ा बच्चा है तो पोर्शन साइज इंक्रीज करके स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे 2 to 4 वीक्स मॉनिटर करेंगे, रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो क्या करेंगे। बच्चे तो भैया अपने मन की मर्जी होते हैं, वो आपकी सुनेंगे नहीं, हाँ, बड़ों को तो बोल दो भाई ये करना है करना, बच्चों क्या करोगे आप, then you may need to basically give the nasogastric tube, और अगर लॉन्ग टर्म जरूरत हो क्या करोगे, पेग ट्यूब्स, सुना ना, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब्स रिक्वायर्ड, दैट मे बी रिक्वायर्ड, सो उससे देना है, ओके। सो बच्चे चूंकि उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो उनको समटाइम्स स्मॉलर चिल्ड्रन दे मे रिक्वायर द नाइट टाइम फीड्स इन्फ्यूजन के थ्रू, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इसके बाद में नहीं हो रहा तो देन द चाइल्ड कैन बी एडमिटेड एंड ही कैन बी गिवन पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन, और उसके बाद फिर अगेन रिवर्स प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड। So this is the basically summary of the daily requirement of the nutrients in children with chronic liver disease, which has been published by our director sir last year and from the many departments which I have discussed. हाँ ले लो। अब डिफरेंट कंडीशंस जो एडल्ट में नहीं होती है, बच्चों में, ओके, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इन द मेटाबॉलिक डिजीज, जहां पे हमारे कार्बोहाइड्रेट की या उसकी प्रोटीन की डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, एंजाइम ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे, लाइक गैलेक्टोसीमिया, जहां पे इन टारगेट प्रोडक्ट हो गया की प्रॉब्लम हो गई, टारगेट इंजेक्शन में प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट टॉक्सिन बनने लगते हैं, वो लिवर को किडनी को प्रॉब्लम करने लगते हैं। सो अब उसमें क्या, जैसे मैंने बताया कि छोटे बच्चों में क्या होता है, गैलेक्टोसीमिया, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज्यादा कॉमन होता है, टायरोसिनेमिया, थोड़ा सा 3 साल के ऊपर गया तो विल्सन डिजीज, ग्लाइकोजेनेसिस डिजीज, ये सब कॉमन होते हैं। और नाउ कमिंग टू द गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है, एक एंजाइम होता है गैलिपुट, दैट इज गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट ट्रांसफरेज, वो नहीं होता है, तो लैक्टोज जो है, गैलेक्टोज ये जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो लॉट ऑफ दिस गैलेक्टोज इज बेसिकली डिपॉजिटेड इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द लिवर, किडनी एंड अदर थिंग्स। सो वी हैव टू, दिस इज द वन ऑफ द रेयर कंडीशन जहां पे हमको माँ का दूध बिल्कुल नहीं देना है, माँ का दूध भी टॉक्सिन है। एक ये कंडीशन हो गई, एक होती कंजेनाइटल लैक्टोज डेफिशिएंसी, ये सिर्फ 2 कंडीशंस होती है जहां पे माँ का दूध भी नहीं देना होता है, जहां पे माँ का दूध ही टॉक्सिन है, या बाकी तो है ही है। So these are the only 2 contraindication for the breastfeeding. Okay, तो इसमें देते क्या है, हमारे ऑप्शन क्या है, केसिन बेस, लेकिन केसिन आता तो मिल्क से ही है ना, तो वो नहीं दे सकते। और क्या दे सकते हैं, सोया बेस मिल्क, यस दे सकते हैं और देते भी हैं, बट 6 महीने के अंदर सोया बेस मिल्क नहीं देते, 6 महीने के बाद देते हैं। तो 6 महीने के पहले बच्चे को क्या करेंगे, उनके लिए आता है एक एलर्जी फॉर्मूला होता है,
हाइड्रोलाइज फॉर्मूला है, दैट इज एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज फॉर्मूला और अमीनो एसिड बेस्ड फॉर्मूला, वो उनको देते हैं। बट ये तो 1 साल तक हो गया। उसके बाद जो बड़ा बच्चा हो गया उसको क्या करेंगे, वो कहते हैं कि जैसे गैलेक्टोज हो गया वो फ्रूट्स में तो पाया जाता है, तो क्या करेंगे आप, फ्रूट्स देना नहीं देना बड़े बच्चे को। तो व्हाट इट हैज बीन सीन दैट जो फ्रूट्स है वेजिटेबल है उसमें जो है जो गैलेक्टोज अमाउंट है बहुत नेग्लिजिबल होता है, सो दैट कैन बी गिवन। लाइक हमारी बॉडी खुद जो है प्रोड्यूस करती है दैट इज अराउंड 1000 मिलीग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैलेक्टोज पर डे, और फ्रूट्स में अराउंड जो है जो 2-3 हम लोग खाते हैं हार्डली 50 ग्राम पर डे होता है। तो फ्रूट्स आर नॉट बेसिकली कंट्राइंडिकेटेड, दे कैन बी गिवन इन द केसेस ऑफ गैलेक्टोसिमिया। अदर इंपॉर्टेंट ग्लाइकोजन स्टोरेज, सो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। तो कॉमन होता है 1, 3, 4। 4 इज वेरी सीवियर टाइप, इन्फेंसी में ही दे कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज 90% एंजाइम होते नहीं है, सो द पेशेंट डाइज विद इन मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेटी। तो टाइप 1 एंड टाइप 3 में होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि फाइनल स्टेप जो ग्लाइकोजेनेसिस का वो इफेक्ट होता है, टाइप 3 में ग्लूकोनेओजेनेसिस इफेक्ट होता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी। स्टोरेज भाई हम जैसे सुबह से नहीं खाया, हमको कुछ नहीं हो रहा कि हमारा हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया में जा रहे हैं, अंदर से करा अच्छा हम दे रहे हैं आपको, सो वी आर गेटिंग शुगर फ्रॉम दैट, बट यहाँ पे नहीं है। और सिरोसिस इंडिसिस सिरोसिस में भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या देते हैं, कॉर्न स्टार्च थेरेपी। अनकुक्ड कॉर्न स्टार्च थेरेपी इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट्स। क्यों ये क्यों देते हैं, अनकुक्ड व्हीट भी दे सकते हैं, अनकुक्ड राइस भी दे सकते हैं, बट yes because they are basically digested within hours। कॉर्न स्टार्च में क्या होता है कि अल्फा 4 अल्फा 6 जो ब्रांचिंग होता है 20 टाइम होता है, एक मेन है इसका एक ब्रांच बना, फिर उसका ब्रांच बना, फिर इसका ब्रांच बना, इसका ब्रांच बना, और कोई भी डायरेक्टली ब्रांच नीचे से नहीं होगा। जो एंजाइम्स हैं ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, वो एक एक करके काटते हैं एंजाइम्स, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉर्न स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स है, उसको धीरे धीरे कर काटेगा तो ग्लूकोज एक एक मॉलिक्यूल धीरे धीरे रिलीज होगा, so it can maintain the euglycemia for the 4 to 6 hours, so this is the very very important। so this तो छोटे बच्चों में क्या करते हैं हम लोग, समटाइम्स नाइट में जो है बहुत छोटा बच्चा 3-4 महीने का तो ब्रेस्ट फीड ले ही रहा है, कर नहीं ले रहा है, तो समटाइम्स यू मे नीड टू गिव द इफ ही इज नॉट एक्सेप्टिंग ओरली तो नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब दे सकते हैं। और कॉर्न स्टार्च की डोज अराउंड 1.75 to 2.5 होती है, वी कैन टाइट्रेट इट। 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि 1 में क्या है कि फाइनल पाथवे होता है, तो ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और सुक्रोज का एक ही पाथवे होता है। तो 1 में क्या करते हैं कि हम लोग जो है शुगर और फ्रूट लाइक मिल्क ये दोनों भी जो है अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और 3 में जो है शुगर और मिल्क रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, बट इसमें क्या करते हैं कि वी कैन गिव द हाई अमाउंट बिकॉज देयर इज अ मसल ब्रेकडाउन फॉर द ग्लूकोनेओजेनेसिस, सो प्रोटीन इज गिवन इन वेरी वेरी गुड अमाउंट इन टाइप 3। एक होता है हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, फ्रक्टोसीमिया। फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट यहाँ एंजाइम नहीं होता है, तो ये एंट्री दो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट है, दे डिपॉजिट इन द लिवर किडनी, डैमेज कर देता है। तो इसमें कैसे पता करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ आदत है बच्चा पैदा है तो उसको शहद सुंघाने शहद खाने की है ना, many people give honey and sugar water। अगर बच्चा पैदा हुआ आपने हनी दिया and he started the intractable vomiting, abdominal distension, diarrhea, then one can suspect that he may have the fructosemia, HFI, hereditary fructose intolerance। और माइल्ड है तो लेटर ऑन क्या होता है कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया होता है, उसको वो क्या करता है कि जैसे उसको पता है कि स्वीट खाया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दिस पेशेंट अवॉइड स्वीट्स एक्चुअली। और सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया गया तो सीजर्स हो सकता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंड ही कैन गो इनटू द लिवर फेलियर। तो हमको क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, तो हेरेडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस में ग्लूकोज पाउडर इज देना है, चीनी दे सकते हैं, ग्लूकोज नहीं सकते। क्यों, चीनी में क्या होता है, चीनी सुक्रोज, सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है उसमें, ग्लूकोज में नहीं होता है, तो ग्लूकोज कैन बी गिवन बट सुगर कैन नॉट बी गिवन।
ठीक है, मिल्क दे सकते हैं, लेग्यूम्स दे सकते हैं, मीट एक नॉन वेज दे सकते हैं, एस्पर्टेट दे सकते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर दे सकते हैं, मैनिटॉल मैनू दे सकते हैं। नॉट अलाउड में क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है, दे शुड बी बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड। हनी नहीं दे सकते, 40% फ्रक्टोज होता है। जैगरी नहीं दे सकते, कैरेट, स्वीट पोटैटो, बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरीज, सॉस, जैम, जेलीज, दिस शुड नॉट बी कंटेंट, एंड मेडिसिनल सिरप्स। एक हो गया टायरोसिनीमिया, इसमें ये है अमीनो एसिड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम हो गई। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, टायरोसिन एंड फेनिलएलनिन की डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं एंड दे कैन कॉजेज द न्यूरोलॉजिकल क्राइसिस, हिपेटोटॉक्सिसिटी। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टायरोसिन एंड फिनाइलिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, और एक एंजाइम होता है जो कि इनको ब्लॉक करता है टायरोसिन एंड फिनाइलिन, दैट इज नोन एज एंटीबीसी। ओके, ये देते हैं। सो दिस इज द टायरोस नाम से आता है ये, वो देते हैं, और एंटीबीसी एंजाइम देते हैं। और जब भी कंडीशन एक्यूट क्राइसिस में ठीक हो जाती है, देन वी ग्रेजुअली गिव द ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला, बट वी हैव टू मॉनिटर ऑल दिस plasma, tyrosine and filanin level in between to see that the basically all these are in the normal level. हम लोग कॉपर की बात कर रहे थे सुबह, तो विल्सन डिजीज यूजुअली 3 साल के बाद ही डायग्नोस होता है, बट चूंकि आजकल जेनेटिक्स आ गई है, एक बच्चे को ऑलरेडी है तो दूसरे बच्चे का भी हम लोग कराते ही हैं, तो ATP B7 अगर उसका जो है वो है, देन we can delay some time the basically Wilson disease उसका जो basically clinical presentation by avoiding the liver, shellfish, nuts, chocolates and mushrooms. सिर्फ फर्स्ट ईयर में काम करता है, 1 साल का हो गया फिर कुछ भी कर लो नहीं काम करने वाला है। उसके बाद यू कैन अवॉइड बेसिकली, जैसे मैं बताया एक सेशन में कि जो कॉपर ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर जो उसके वो होते हैं वो ऐड करना चाहिए, नट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, मशरूम्स हो गए, बट बहुत ज्यादा रोल नहीं है इनका डाइटरी का। बाद में 1 साल के बाद, 1 साल तक तो थोड़ा बहुत है। ये कॉपर कंटेंट की बात हो रही थी जो मैं पूछ रहा था कि इंडियन डाइट में बहुत ज्यादा कॉपर नहीं है। अरे नहीं, हाई कॉपर की बात हो रही है, जो हाई कॉपर, हाँ हाँ हाई, For the basic less than 1.5, मेरा टारगेट रहता है कि 1.5 से नीचे रखना है इसका। तो सर अगर 100 ग्राम पूरी दाल ले लेता है तो 150 तो दाल से पूरी हो जाती है, बच जाता है 0.5। जैसे बहुत ज्यादा, जैसे परवल में बहुत ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट्स में बहुत होता है, प्रोटीन पाउडर में बहुत होता है, सर मेनली कल्प्रिट इज दाल एंड nuts, not wheat flour. wheat Also containing high copper containing, अगर 100 ग्राम कोई भी अनाज ले लेता है तो 150 पूरी हो जाती है, बट कैलोरीज रिक्वायर्ड, जैसे करने का कि दे आर इन हाइपर कैटाबोलिक स्टेट, दे रिक्वायर मोर कैलोरी फॉर द कैलोरी कैपेसिटी टू इम्प्रूव द कार्ब आल्सो। तो हमें उसको कहना पड़ता है कि अगर आपको 200 ग्राम कोई सीरियल प्रोडक्ट लेना है तो 100 ग्राम गेहूं भी लेना है, तो 100 ग्राम यू कैन नो बट सूजी, मैदा रिकमेंड करना है। यहाँ पे क्या है ना, दिस इज सिचुएशन रिवर्स, यहाँ पे कॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, बिकॉज हियर द कॉपर इज नॉट मेटाबोलाइज्ड एट ऑल, सो हियर यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द हाई कॉपर डाइट, सो दिस इज डिफरेंट इशू। हाँ हाँ रिस्ट्रिक्शन, हाँ यस यस, बिकॉज सो हाई कॉपर जैसे ये हो गए तुम्हारे रेड ग्राम, सोयाबीन, ये वाटर चेस्टनट्स, ऑलनट्स, क्यूमिन, कोरिएंडर, लीवर, खासकर नॉन वेज वाले, दे आर द हाई, दिस यू हैव टू बेसिकली रिस्ट्रिक्ट। एंड जो बताया कॉपर जो पाइप्स होती है वो सब होती है, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। इसमें दे आर मिनिमम कॉपर, बहुत ज्यादा नहीं है। सो कमिंग टू द टेक होम मैसेज, सो लीवर इज द वेरी वाइटल ऑर्गन्स फॉर मेटाबॉलिज्म, digestion, storage, synthesis of the vital nutrients. Serial assessment is very, very important in children, and serial nutritional assessment and serial nutritional monitoring is very, very important. And early nutritional intervention for the micro and macronutrients both are very, very important. And prevention of malnutrition is very more important than basically
doing something after the child is having the severe malnutrition. Disease specific intervention of nutrients and dietary exclusion is vital in the treatment of metabolic disease of liver in children. So thank you for the listening.